Is it possible to get my enamel back? कि जब आप छोड़ दोगे ना उसके बाद भी आपके अंदर कैंसर डेवलप हो सकता है. सो दिस इज हाउ डेंजरस दिस गुटखा थिंग इज. सबसे बड़ा लैकिंग क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो ये है कि आज के दिन एक पढ़ा लिखा इंडियन भी ये सोचता है कि किड्स टीथ डू नॉट नीड एनी इंटरवेंशन. ब्रशिंग का पर्पस है सिर्फ वो सलाइवा की लेयर को हटाना. अब टूथपेस्ट हमें वो यूज करना है जो भी कोई गम केयर के लिए है. तो व्हाइटनिंग टूथपेस्ट आर अ बिगेस्ट हॉक्स. माउथ वॉश क्या करता है? माउथ वॉश ना बीच बीच में आपको मेंटेनेंस के लिए इज ओके. नमक पानी कुल्ला, दैट इज द बेस्ट माउथ वॉश दैट यू कैन हैव. किसके लिए कौन सी चीज सही राइट फिट है? क्या इनविजिलाइन बेस्ट है? मॉडर्न ब्रेसेस एक्चुअली हैं और उतने काम करते हैं जितना ब्रेसेस करते हैं? Most challenging was just to keep the quality consistent, to hire that kind of team. I would just want to know more about karma. So that's the aim. So it is like giving back to the society. Like when I opened the first clinic, okay, so I did not know that we have to charge a consultation fees. सक्सेसफुल औरत के पीछे आदमी का हाथ है. 110. सेम गोज डेंटिस्ट्री में. तो कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि ठीक है मैं फलानी ब्रांच में एमडी कर लेता हूँ, देन आई विल बी एबल टू सी ऑल द पेशेंट्स. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स में बन सकता हूँ. सो आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ डॉक्टर नारायण शेट्टी. मतलब ही इज लाइक आई हैव रिटन अ मेल टू हिम एज वेल एंड दैट इज हाउ इट ऑल केम अलोंग एज वेल. इफ पेशेंट विल नॉट बी स्माइलिंग प्रॉपरली then the experience was not good. In order to give the patients specialized treatment, which is very much available in the market, just that they do not know it. Because we were always like coming from that background, he doctors first, and I will die a doctor. Dr. Vandana Thakran, a visionary maxillofacial surgeon, an award-winning entrepreneur, and the founder and director of Mint Leaf Dental, one of NCR's most trusted dental chains. Dr. Vandana trained at India's finest institutions, PGIMS Rohtak and Maulana Azad Medical College, New Delhi. Since founding Mint Leaf Dental in 2014, she's redefined dentistry in India, combining ethics, expertise, and empathy. Under her leadership, Mint Leaf has grown from a single clinic to multiple world-class centers, driven by a team of skilled women doctors. She's also the force behind initiatives like Project Karma, providing privileged dental care to the underprivileged. Project Bargad, gifting over 10,000 plants to patients, honored with multiple awards including Nari Shakti, Best Dentist, and Entrepreneur Excellence. Dr. Vandana is truly creating a beautiful world, one smile at a time. First, I would want to ask you why Mint Leaf? मतलब ये नाम आपको कहाँ से आया? आपने Mint Leaf ही क्यों चूज किया? Mint Leaf इसलिए क्योंकि when we decided that we have to start with the dental clinic, because I am a trained maxillofacial surgeon. So I'll just go a little back with this. Please. So one thing is कि I never wanted to start with a private thing, anything private venture में नहीं जाना चाहते थे हम. Why? Because our parents were in private sector and we were very much like कि this somehow sucks that time out of your personal space. So we were very much specifically I wanted to just do it for the people always. So coming from Maulana Azad Medical College and PGIMS Rohtak, so when I finished all my residency and all my studies and I came into the private sector, so that was a shock for me because there was something absurd wanted out of me. I did not know how the people were actually accommodating towards it, but I somehow decided that I cannot do this. And I was not finding my niche anywhere. Because I belong to that institution where only surgeries were done and everything. So the main purpose was that I want to practice maxillofacial surgery. So there should be a OT setup. But that of course needs an ICU with it and everything else. So that thing, the first step was what is my basic education. Like I'm a dentist first, then I became a maxillofacial surgeon. So let's start from there. So we decided कि let's start from dental clinic. And when we were searching for This is which year? This is 2014, right? Okay. 2013, end of 2013. Oh, okay. So we were searching for the name, of course. So the usual suggestions that came was
my name, Dr. Vandana's, or my surname, Thakran's, and all that, because everybody wants their own something to carry on, and people should know कि हाँ यहाँ ये डॉग सब काम करती है. But it was somewhere behind my thoughts that I don't want this to be stuck to my name only. I want to practice something bigger here. So there should be something which is related to dental health, or to which brings freshness, right? So one is clove, so that was already taken. Then comes this mint. It's bobbed up mint leaf. So why not mint leaf? So we were like, okay, mint leaf it is. So we did not give a lot of thought into it, unless it's not Dr. Vandana's or Dr. Thakran's. It could be anything which could fit into this. Correct. Because the whole purpose was just to highlight it. And the main thing was that we wanted to, make it like dental, that this is somewhere where you will be given the priority dental treatment. So Correct. that's how all mint leaf Mint leaf dental came. started. Yeah. Okay, so you started this back in 2014. Yeah. So where did you first start this? In Gurgaon itself? Yes, Gurgaon. Sector 47, Malibu Down. That was Oh, our first okay. clinic. In 2014, my younger daughter was just 5 months old. Oh. And we were into it. And how were you juggling between the two? As a surgeon, you are very much, because my elder one was born when I was doing my surgery residency. So, we surgeons are trained that way, that we have to, take on the emergencies. And so and I have got a very supportive family that way. So it was very much never an idea to skip few years or give a break on that. Rather, those 3-4 months itself was a lot for me to sit home and and not getting anywhere, because wherever I was going before that, they were just asking me what else you can do. Correct. So it's like, if I'm a surgeon, then I'll do surgeries only. So that was the first clinic in Sector 47. In February 2014, we started there. And then slowly every year a clinic was added on, and Yeah. we kind of built some 8-9 clinics. Oh, wow. Yeah. And then during All across Delhi NCR? Yes, in Delhi we reached till Hauz Khas. Oh, wow. Yeah, in SDA market we had one there for nearly 3 years. We had one there. But during COVID we had to retract back a little bit for obvious reasons of health, plus the rentals and everything that was around it. So we decided to just step back a little bit. And after that, But then dental se सीधा एकदम business entrepreneur, how this entire journey came in. मतलब, are you still bootstrapped? yes, totally. Wow. And building, so many. There is a reason behind that as Yeah. well, because we had been, and I'm guilty on that as well, because I have even pitched for the investors and everything. But somewhere along the line, we got this, because when we talked to them, there were different ideas coming over, and the idea of the healthcare becoming a full-fledged business, that doesn't fit in with us somewhere. It So kind of dissolves the entire purpose. the entire purpose. And अभी में क्या लग रहा है मुझे कि जैसे हम में, और मैं बोलती हूँ कि फोर्टिस या कोई भी चीज़, कोई भी ऐसे मल्टीनेशनल चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, the people who are governing are non-medicals. They cannot understand how a doctor works. They cannot set a target for them. Absolutely. So, but they are given as targets. So, doctors are considered as employees. But why do doctors always get into this and become employees only? Because they're never taught that finance Correct. thing. They are not confident enough to actually get into their own enterprise and take it forward. Maybe small here in their clinics, but not the entire thing. So this is what they take advantage of, all these big shots, and they hire them at maybe a higher scale and give them targets. Rather, these days, I am seeing my generation, even the younger generation, they are coming up with very good enterprises, hospitals, chains, which I'm very, very proud to see them working like this, because otherwise the doctors were like, they just have to treat and they don't have to worry about the finances, how the business goes and everything. Correct. For me, it was like, I would say I am a situational entrepreneur, because I never thought that we will make it that big. It was always need-based.
like when I opened the first clinic, okay, so I did not know that we have to charge a consultation fees because I was working in a government setup. Correct. सुबह से शाम तक हम काम कर रहे हैं, महीने के एंड में हमारी सैलरी आ रही है, सो बहुत सेटिस्फेक्शन उसमें मिलता है। Correct. अभी कोई एंटर कर रहा है, मैं उसके साथ बैठ के उतना ही टाइम उसको दे रही हूँ, कभी कभी घंटा भी, बिकॉज इन द बिगिनिंग यू डोंट हैव दैट मच पेशेंस। दिन में Correct. अगर 3 पेशेंट भी आ रहे हैं, मैं 3 के साथ एक एम्पल टाइम स्पेंड कर रही हूँ, Correct. और वो मेरा एक तरीका है काम करने का। लेकिन वही चीज मैंने बाद में जाके देखा कि दैट इज द वन थिंग दैट मेड द होल लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर द पीपल, Correct. फॉर एज अ पेशेंट। दिस इज द डॉक्टर हु इज गॉटन ऑफ दैट टाइम to spend with me for the same kind of consultation. So I used to treat them, they used to go back, and I used to forget. And my husband used to tell me कि किराया निकल जाए तो अच्छा ही है, तो तू थोड़ा कोशिश कर। हाँ. Then I hired a boy who used to sit there. बाद में उसको बोला कि रुको 2 मिनट, then he used to come in, मैम चार्ज कर लिया। But that is one part which I am still not very comfortable with. So धीरे धीरे जब टीम बनते गए, अभी भी मेरी टीम है कि जब भी कोई पेशेंट, इफ दे इवन आस्क मी समटाइम्स, देन दे विल से हाँ मैम ठीक है कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन द डिटेल्स, बिकॉज दे नो दैट आई कैन ऑलवेज से कि कर दो यार, इसमें क्या कुछ नहीं होता। Correct. But that has been a journey in itself, and that is when I realized कि I'm a surgeon and I want to do the surgeries only. Whenever a patient used to enter, Right. I used to fear कि अभी RCT करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, मुझे पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या मुझे कॉस्ट उसको करना है, किस तरीके से काम करना है। सो दिस वाज लाइक अ वेरी आई वुड से challenging period for me, not as a कि I was working hard, but mentally it was very challenging कि where am I going, what I am doing, क्या मुझे करना था, कहाँ मैं घुस गई हूँ, नो सर्जरीज करनी थी और अभी मैं क्या कर रही हूँ, हाँ बिजनेस में घुसी हुई हूँ, और वो चीज़ एक जो which was never a bed of mind for me. So but I've always taken challenges, like maybe there is something for me to learn in this. Correct. So maybe this is the purpose. Maybe my final purpose goes through this way. Yeah. So I just kept on working. Of course, my husband was always with me. In the evenings, he used to take care of all the other things, the management and तो एक the non-clinical things. सक्सेसफुल औरत के पीछे आदमी का हाथ है। 110 उसके बिना कभी भी नहीं हो सकता। एक आदमी भी और एक अच्छी मदर इन लॉ भी, वो होना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज माई मदर इन लॉ इज लाइक कि तू घर पे नहीं बैठ सकती, तुझे कुछ भी करना है, बच्चे बच्चे जो भी हैं वो ठीक है तेरे हैं, बट तू घर पे नहीं बैठ सकती है, क्योंकि बिकॉज शी हरसेल्फ वर्क्ड। Of course, they had their clinic in the house downstairs, and they used to live upstairs. But she knows how frustrated it might make a woman to just sit there. मतलब, a lady can do anything when she's working. Absolutely. She can take care of her kids very well, of the house, husband, parents, and everyone. And this thing has actually empowered me a lot. This gives a purpose to me that I am something. Maybe I don't know how much I earn or not, but when I go out of the house, then I'm a different person and trying to make a difference in the society. Yeah. So what was the turning point? So आपने एक डेंटल क्लिनिक खोला, Yeah. and then ये इतना बड़ा चेन कैसे बना? What was the turning point? Okay, so initial 4-5 months I was just sitting there and doing the same thing every day. And I had a small 5-month-old kid with me. So taking care of her, and as usual जो भी एक life के challenges होते हैं वो चल रहा था. And then I thought that I need a help at my clinic. So I started interviewing a few dentists. Okay. So when I was interviewing them, then I got to know that whosoever doctor is coming for the interview, they want to practice their own specialization. Yeah. So if I am interviewing a pediatric dentist, then the pediatric dentist want to. Correct. एक MD करने के बाद कोई इंसान MD क्यों करता है? कुछ लोगों का बहुत ज्यादा एक जैसे मैं अगर आपको इसको मेडिसिन के विज़ दूं, तो कोई जनरल मेडिसिन अगर कर रहा है तो सोचता है ठीक है मैं क्लिनिक खोल के बैठ जाऊंगा, आई विल बी एबल टू सी ऑल द, और फिर मैं स्पेशलिस्ट के पास उनको रेफर कर सकता हूँ। सेम गोज डेंटिस्ट्री में। तो कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि ठीक है मैं फलानी ब्रांच में MD कर लेता हूँ, देन आई विल बी एबल टू सी ऑल द पेशेंट्स एंड मे बी वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स में बन सकता हूँ। बट मोस्ट ऑफ देम आर लाइक कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, चाहता हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ। Correct. तो मैंने देखा कि हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं जो ये करना चाहते हैं, और हमारे पास पेशेंट्स भी हैं जिनको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट चाहिए या शायद उनको नहीं पता है, बट एज डॉक्टर्स इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव टू देम. So
दोनों चीज को बस मिलाना था। तो वो मिलाने के लिए हमें एक क्लिनिक पे मैं सबको नहीं रख सकती थी। तो वी थॉट कि ठीक है, हमारे पास इतना बैंडविड्थ है, वी डिस्कस्ड है हमारे पास इतना बैंडविड्थ, एंड अराउंड दैट टाइम ओनली पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि मेरे कोई रिलेटिव्स फलानी जगह पे रह रहे हैं, आपका वहाँ कोई क्लिनिक नहीं है, आप वहाँ कोई डॉक्टर बता दीजिए एंड ऑल दैट। तो हमें लगा कि चलो एक क्लिनिक और डालते हैं, मे बी वी कैन जस्ट मेक द डॉक्टर्स सिट देयर एंड दे कैन ट्रैवल। करेक्ट। तो डॉक्टर्स वहाँ बैठने शुरू हुए। तो सेकेंड क्लिनिक केम इन मई 2005 15 जून 2015। ओह वाओ, बहुत जल्दी ग्रो किया आपने। हाँ, June 2015, and this clinic actually took up, like, anything. From day one, it was a success. वाओ। So then the third one came in April 2016. Then fourth and fifth, they came in 2017, October and November, when we entered Hoskas. So at that time, it was like more on we were on the verge of expansion. Okay. So we had all this till 2000, end of 2019 and beginning of 20. Then 2020, January came 67. That was our 6th or 7th clinic. And then came COVID. So we had to wrap up DLF phase 2 and Hoskas wala clinic. Okay. So the others were still there. And then we worked on it. Then we entered the 8th clinic, came in Narayana Hospital. So that was in 2009, 20 or 21. And we were there for 2 years. But sadly, uske baad mein the patient flow and all that dentistry related is not very exciting there. So I'm a big admirer of Dr. Narayan Shetty. He's like, I have written a mail to him as well. And that is how it all came along as well. Because Dr. Narayan Shetty, like... So big shout out to Dr. Narayan. Dr. Narayan Shetty is like, I'm Ekalavya for Dr. Narayan Shetty. So I wrote the same words to him and he was like, my blessings and best wishes to you. So I always wanted to be associated with him. So now his son, Viren, is taking care of all the Narayan hospitals. So I wrote a mail to him and he directed me towards this. Oh. So the Narayana ki jo bhi facility and the director there, they were all very cooperative and everything. And we had a good time there, but sadly the kind of patients that we were into, they were not there. So we had to take a step back from there. So that is how it, basically the thing is that in order to give the patients specialized treatment, which is very much available in the market, just that they do not know it. Correct. We just acted as connector of connecting the doctors with the patients. Okay, so there are now multiple clinics and patients can visit any of the clinics. They will be treated by the same specialist whichever clinic they visit. Oh wow. For example, you visit Sector 52 today and you've been advised RCT and CAP after that. So your RCT started, but tomorrow whenever you have your next appointment, you cannot come to Sector 52. You say that around the same times I am near Sector 27, so I want to come there. So the same doctor will travel there. Oh. Yes. And she will do the remaining part there. So it's not that every time you go somewhere and you'll meet a different doctor. No. Wow. The same specialist will treat you. Of course, the general thing, the scaling and fillings, that can be done by the other people. But the specialist, if any surgery has to be done, wherever. That would be done by these. By me only. I am still till date, I am taking care of all the surgeries, starting from the minor extractions to anything trauma or cyst or anything, whatever will be done. So that is, I will travel everywhere. So this is how we operate. Everything is very centralized. And this is how we expanded, only to meet the need of the people and the doctors. So this is front end, but then let's kind of go on the back end also. सामने से तो बहुत सारी चीजें हैं ना, इतनी स्मूथ एंड क्रिस्प लग रही हैं, बट पीछे से what makes you so different and how were you able to scale at such a level within 10 years or 11 years of time? क्या अगर so let's say अगर हमारी audience में कोई dentist है and he wants to open his own clinic and want to expand at that level where you are currently, what are the 5 things that you would say they should ponder on कि ये तो करना ही करना चाहिए and work जो आपके लिए भी work किया हो अच्छा? Question 5, I don't know, but I will be able to tell you about 2, 3. Number 1 is that
whatever you trying to do, like if we are opening a dental clinic, then of course we are trying to earn at, but through what we are trying to earn? Through our patients. Correct. So whatever you are giving, that should be the best. Then only you will be able to, otherwise अभी generally एक चीज क्या होती है, आज आ गया पेशेंट तो हमने उसको फ्लीस कर लेना है, जो भी मैक्सिमम उससे ट्रीटमेंट हो सकती है. You don't want, or you do not have trust in yourself that that patient might not come again, right? So in somewhere back of your mind, if your main priority is earning, if your main priority is money, Then then the service and everything will be destroyed. तो जब आप जो आपको करना आता है आप वही ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो आपका मनी भी कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा. Correct. So money is always secondary, and I will not say कि we make a lot of margins on that, but of course that is a part of the thing that we are doing. Good. Yeah. Correct. So मेन पर हम जो कोई भी अगर क्लिनिक डालना चाहता है या जब भी हमने किया, तो जो मेन पर्पस था वो यही था कि वॉट एवर सर्विस वी आर गिविंग, हमें उसमें फिर ये नहीं देखना कि हम इससे क्या चार्ज कर रहे हैं. Correct. तो हमें उसको बेस्ट ही सर्विस देना है. और उसका रिजल्ट अभी ये है कि द फर्स्ट पेशेंट हु विजिटेड मी व्हेन आई वाज सिंगल डॉक्टर इन सेक्टर 47 इज स्टिल विजिटिंग अस with all of her family, and I seldom see her because she's so satisfied with my team. Wow. So this is how it progresses. तो उसके एक बार जब आपका ट्रस्ट गेन होता है, तब उनको ये बात को समझ में आने लगता है कि why are you charging, what is the equation behind it. Correct. आप स्पेशलिस्ट उनको दे रहे हो, और इसमें इतना विन विन सिचुएशन होता है. मैं स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट उनका कर रही हूँ, मेरा डॉक्टर इज हैप्पी because she's doing what she loves to do. Correct. Right? Patient is getting painless treatment, healing is seamless, और on the chair जो patient का time है, that is minimal. And what is she or he getting charged at par or maybe less than what they are charged at the premium dental clinics somewhere in Gurgaon or anywhere else. So this is the difference, and this is how a person or a doctor who's planning to work towards their own private venture should start with. आप ये नहीं भूल जाओ कि स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉफिट्स होने वाले हैं, और अगर मैं अपना बोलूँ तो हम इसलिए बढ़ पाए क्योंकि हमने वो जो भी प्रॉफिट्स आ रहे थे वो अगली क्लिनिक में डाल दिए. Correct. जैसे ही सेकंड क्लिनिक में प्रॉफिट्स बनाए, उससे हमने थर्ड क्लिनिक, अपनी जेब से पहली क्लिनिक के बाद कभी भी नहीं डाला. तो वो एकदम क्लिनिक के बाद क्लिनिक डाला, क्योंकि वहां से जो प्रॉफिट्स बन रहे थे हम उसी से कर रहे थे. Correct. और वो बिकॉज वी वेंट स्लोली वन बाय वन, एकदम से बहुत सारा नहीं था, सो वी वर एबल टू मैनेज एज वेल. Plus, वो trust था already with course. patients also. ऑफ कोर्स. I was just reading, you do a lot of, social, you are into a lot of social causes also, and I was just reading about karma also. I would just, want to know more about karma. So karma, another is when we opened up this clinic, the first clinic, then there were guards in the society who used to come for the treatment. So we never denied any treatment to anyone. तो कभी होता था मेरे पास पैसे नहीं है मैडम, कभी होता था 100 रुपए है, कभी 200 रुपए है. सो वट एवर दे वॉन्टेड टू गिव, वी ठीक है तुम्हारा ट्रीटमेंट हो गया, तुम्हें पेन में आराम हो गया, ठीक, देना है दे दो, नहीं देना है कोई बात नहीं. Because we were always like coming from that background, we doctors first, and I will die a doctor. Yeah, so that thing will always be our priority. My kids even say ki mom, because I'm happiest the day I do a surgery, not I'll do a meeting or I might collect some award or कोई मुझे कोई डील मिल गई है, मैं उस दिन शायद इतना खुश नहीं हूँ. तो जिस दिन मैं सैड होंगी they'll ask me कि मॉम आज कोई सर्जरी नहीं किया क्या आपने, and then I'll try to show them the pictures and they'll be like no, it's okay. जब हमने वो होता रहता था, तो जब धीरे धीरे ना ये बढ़ने लगा, अब एक कंपाउंड है उसके अंदर 4 डेंटल क्लिनिक्स हैं, बाकी 3 उनको डिनाई करते हैं और दे आर चार्जिंग ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वो एक ही क्लिनिक पे ज़्यादा आएंगे. हमारे पास थोड़े से ये वाले पेशेंट्स बढ़ने लगी. सो वी समहाउ हैड टू स्ट्रीमलाइन दिस, एंड दिस वाज वेरी नियर टू आवर हार्ट कि when pain does not differentiate between rich and poor, so who are we to? And the places that we are coming from, हमने कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम काम क्या करते हो, एक्सीडेंट हुआ है, तुमको ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, कुछ भी है,
तुम्हें करना है, हमारा काम है उसे करने का, करेक्ट ठीक है। तो यही चीज हम प्राइवेट में करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इसलिए कि वो हमें पे नहीं कर सकता हम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं एंड वी आर नॉट ट्रूथफुल टू आवर सेल्स। हमारी इंटेंट में कहीं दिक्कत है और हम जो बोल रहे हैं कि हमारा ये पर्पज है वो पर्पज है, वो सब झूठ है, ठीक है। तो वो नहीं करके, तो वी वांटेड टू जस्ट बी ट्रूथफुल टू आवर सेल्स एंड बिकॉज व्हेन वी यू बिकम पेरेंट्स ऑल्सो ना, तब एक वो भी होता है कि बच्चे क्या देख रहा है, कि बोलते तो ये चीज़ है और कर कुछ और रहे हैं। सो हमने फिर ये चीज़ को 2019 वी स्टार्टेड। इसको हमने बहुत ही स्ट्रीमलाइन किया था इसको। वही अगेन कर्मा, एवरीथिंग गोज विद डॉक्टर अरुण। मिंट लीफ नाम उन्हीं से आया था, कर्मा भी उन्हीं से आया। कर्मा इज बेसिकली व्हेन यू सी द लोगो ना, तो ए इज लाइक एरोस, इट गोज लाइक दिस, सो व्हाटएवर यू डू इट कम्स बैक टू so it is a circle, comes back. So that's the A in this. So it is like giving back to the society. So wherever, whatever has society has given us, we are giving back to them. So this is how it started. So when we started Karma, so it was a initiative where we treated all the underprivileged, 1 p.m. to 4 p.m. Monday to Friday at all our clinics. Oh wow. बट द चैलेंज वॉज हियर बिकॉज सैटरडे संडे को नहीं कर पाते थे हम। करेक्ट तो कोई सैटरडे संडे आ रहा है हम उसे ट्रीट नहीं कर रहे, हाँ. कोई शाम को वो आना चाहता है हम वो नहीं कर रहे। करेक्ट तो वो हमारे को बड़ा खटकता था। तो जब तक नहीं था, फिर लगता था कि अलग क्लिनिक डालना है, कर्मा का अलग क्लिनिक होना चाहिए। बट एज यू नो फिर कोविड भी आ गया और जितने हमारे जो भी हमारी सस्टेनेंस के लिए जितना हमारा उसमें था, हम उतना कर पा रहे थे। करेक्ट So there was like always a hope there that we will be able to do this. So when we got into this, then there came कि कर्मा का पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे होगा। So then we decided कि whenever we'll do it properly. Proper कर्मा ट्रस्ट बनेगा, NGO उसको डाल के, and then all the finances will be different. और जो उधर से आएगा वो उधर ही जाएगा and it will be used for कर्मा guys only. So there should not be any mixing matching. और कोई भी एक क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए कि फाइनेंसिस को लेके कहाँ आ रहा है, क्योंकि जब हमने फिर कर्मा ट्रस्ट हमने फॉर्म किया, उसको भी 1-1.5 साल लगे बिकॉज अभी गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है कि क्यों ये ज्यादातर को लगता है अपना ब्लैक मनी को वो वाइट में कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो हमने बताया पर्पस एंड एवरीथिंग, तो लगा 1-1.5 साल, लेकिन वो हो गया फाइनली। सो इट्स बीन नियरली 2 years नाउ, इट्स अ कर्मा ट्रस्ट। और उसका एक अपना अलग से एक बैंक अकाउंट है और वहीं पे ही सारा हो जाता है। तो आई रिमेम्बर दिस गाय हु वाज द बैंक मैनेजर, ही केम टू माय होम एंड मी एंड माय मदर वाज सिटिंग देयर एंड ही जस्ट आस्क्ड मी आप ये क्यों कर रहे हो। हाँ. तो मैंने उसको समझाया बेसिक यही कि कर रहे हैं। कहता मैम ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इससे आपका फायदा क्या है। तो मैंने कहा फायदा ये है कि मैं कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तो कहता है मैम ऐसे थोड़ा ही ना, कोई भी चीज बिना पैसे के फायदे के क्यों होती है। तो द मैनेजर केम बैक टू माय होम टू एक्चुअली नो द रीजन बिहाइंड। और वो चाय वाय पी के बेचारा बड़ा अस्टॉनिश्ड होके वहां से निकला था कि ऐसे लोग भी हैं। तो निकलते हुए उसका ये था कि मैम ऐसे कोई करता है क्या। मैंने कहा हम कर रहे हैं ऐसा। एंड आई मस्ट टेल यू कि दिस इज वेरी, अगर इसको सेल्फिश कहना चाहो तो यस, इट इज वेरी सेल्फिश मोटिव फॉर मी एंड माई हस्बैंड to actually do karma because you know रात को शांति मिली। रात को नहीं, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि शांति कितनी है। और मैं ये नहीं चाहती कि कोई अभी भी कोई मुझे बोल देता है, इवन मेरी मेड की फलानी चीज में मुझे इतना पैसा लग रहा है, तो सीधा वहां चली जाओ तुम। सो वो एक बहुत एक हैंडीकैप वाली फीलिंग रहती है कि मैं कुछ कमा रही हूँ, इसी फील्ड में हूँ, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो अभी है क्योंकि उनका एक दिन का जो हॉस्पिटल जाने का है, वो दिन भी खराब होता है, वेज भी खराब होती है पूरा, एंड द काइंड ऑफ द हैप्पीनेस दैट आई सी ऑन देयर फेसेस। 20-22 साल का डिलीवरी बॉय है, बाइक से गिर गया, सामने के दोनों दांत टूट गए उसके, और वो ऐसे कुछ डिलीवर करने आ रहा है। तो मेरी डॉक्टर ने उसको पूछा कि दांत कैसे तोड़वा लिया। तो उसने कहा गिर गया मैं बाइक से, तो ठीक कर दे। तो कहता नहीं मैंने पूछा था, डॉक्टर बहुत पैसा मांगता है। तो उसको बोला कोई बात नहीं, 200-400 रुपये लगेंगे, तुम यहाँ आ जाओ रोज इतने बजे के बीच में, हम कर देंगे ठीक। अभी तक वीडियो है उसके पास, तो ठीक से बोलना नहीं आता, बट ही सो हैप्पी कि मेरे दांत ठीक किए गए। सेम गोज एक हाउस मेड है और उसको शादी करनी है और उसके सामने सारा फ्लोरोसिस है। उसने कभी सोचा नहीं है कि यार कुछ कर पाऊंगी। एंड लाइक यू सेड ना कि मैं ज्यादा हंसने लगा हूँ, वो चेयर पे बैठे बैठे एग्जैक्टली उसके साथ हो गया था कि पहले नहीं था और बाद में शी सो हैप्पी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है ये हो जाता है। करेक्ट। सो वी डू
all kinds of treatment, like everything from preventive, therapeutic, and cosmetic Wow. for these karma patients. And you won't believe it, the kind of queries that come from them. कि हमको ये विनियर्स नहीं, वो कुछ और तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं. विनियर्स चाहिए उनको, ब्रेसेस चाहिए, कॉस्मेटिक चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ थेरेप्यूटिक के लिए है, चाहिए सब कुछ, बट इट इज जस्ट वो ये सोच के बैठा है कि ऐसा नहीं नहीं हो हो सकता है. So there was this one curious case. I just was entering my Sector 52 center. There was this auto rickshaw wala standing there, and he was throwing some packets into gutka chewing and all out. तो मैंने कहा यार ऐसे यहाँ गंद नहीं मचाओ तुम गेट के सामने. Correct. और तो उसने मुझे ऐसे देखा, कहता मतलब जैसे होता है ना, बड़ा पैशन में था वो इंसान. और वो एकदम से बोलने लगा, नहीं मैडम मैं फेंक नहीं रहा हूँ, सॉरी सॉरी, उठाने लगा. मैं ना अभी अंदर गया था, हाँ. और वो मैडम ने मुझे बताया कि अगर मैं ये चबाऊंगा ना तो मुझे कैंसर हो जाएगा मुंह का. तो मैंने बोला कि हाँ, तो ये तो बेसिक बात है, तुमको ये नहीं मालूम कि कैंसर हो जाएगा. कहता नहीं मैडम हमें नहीं मालूम था, हमें मालूम था कि स्मोकिंग से कैंसर होता है और तंबाकू चबाने से होता है, तो हम वो नहीं चबाते. मैंने कहा गुटखा क्यों चबाते हो फिर? तो क्यूरियसली आई टेल यू व्हाट ही एक्सप्लेन्ड. हाँ. ही सेड कि जब हम ये चबाते हैं हमको नींद नहीं आती है, हम्म. हमको काम करना है, हमको ऑटो चलाना है दिन रात. जितना हम ऑटो चलाएंगे हम उतना कमाएंगे. करेक्ट. ठीक है, हमको अगर ये पता हो कि ये हमें इससे कैंसर हो जाएगा, हम वो काम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आई एम द ओनली सोल अर्नर इन माई फैमिली. मैं सिर्फ इसलिए चबाता हूँ क्योंकि इससे मुझे पता नींद नहीं आएगी और मुझे ज्यादा टाइम काम करना है. एंड दिस थिंग रियली स्ट्रक मी. ही वाज सो मतलब पैशनेट अबाउट टू कीप हिमसेल्फ हेल्दी कि बाकी सब चीजें छोड़ो. कहता मैम मैं कसम खा रहा हूँ आज के बाद नहीं खाऊंगा कभी भी. दिस वाज द ओनली रीजन. उसके बाद में आई ट्रेवल्ड, व्हेनेवर आई ट्रेवल्ड इन अ टैक्सी, आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क, जो भी मुझे चबाते हुए मिलता था. आप मानोगे नहीं, सबका मतलब सबका आई 90% पीपल सेड कि हाँ हम इसलिए चबाते हैं ताकि हमको नींद ना आए. सो हाउ मतलब डेस्परेट इज द सिचुएशन देयर. वो कहते हैं कि इवन सिगरेट पे या अल्कोहल की बोतल पे सब जगह लिखा है इट इज इंजूरियस, इट माइट कॉज कैंसर. इस पे कहीं पे भी नहीं है हमारे लिए ये चीज नहीं लिखी हुई है. एंड आई वाज टेल यू कि गुटखा च्यूइंग से देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड OSMF, which is oral submucous fibrosis, in which everything becomes band-like. Your muscles become board-like. And not only your oral muscles, your esophagus, your stomach, your intestine. So it is a syndrome. Okay. It will not only cause cancer of mouth, can cause cancer of esophagus, stomach, intestine, everywhere. It becomes just board-like. You're not able to open your mouth, even a single finger. और वो धीरे 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 कम होता चले जा रहा है माउथ ओपनिंग उनका. बिकॉज ऑल द मसल्स दे विल बी स्टिफन लाइक दिस स्टेबल, ऐसे स्टिफ हो जाएगी, वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाता है उसका. तो ये जो चीज है सबसे डेंजरस है कि जो बिल्कुल धीरे धीरे आपको इतना ज्यादा कर देगा कि जब आप छोड़ दोगे ना उसके बाद भी आपका सालों तक कभी भी आपको उसके अंदर कैंसर डेवलप हो सकता है. सो दिस इज हाउ डेंजरस दिस गुटखा थिंग इज. More dangerous than tobacco or smoking. And this is what most of these strata people they are doing. Absolutely. तो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि इस चीज को किस तरीके, इवन देयर लेडीज डू इट. Absolutely. ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि जो हमको इस चीज पे एक तो ध्यान देना है. सेकंड इज इनको कोई भी लेडी दे आर ऑलवेज एनीमिक. ठीक है, कोई इनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है ही है, फूड प्रॉपर नहीं है, काम ज्यादा कर रही है. अभी जब हमारे वहाँ पे आ रहे, सो द नेक्स्ट स्टेप दैट इन कर्मा क्लिनिक वी आर थिंकिंग इज इनटू include physician services and some basic lab services. So we're trying to expand it. So after 2 years maybe we will be eligible for getting some CSR funding and all that. So we planning कि अगर कहीं से हमें कुछ ऐसे होता है, अभी अपने ही उस पे कर रहे हैं कि within next month or 2 we will try to get a bigger place and at least start with some, because I have been approached by certain these MBBS guys जो कि हफ्ते में 2-4 घंटे का pro bono, yeah, they can give their services. Wow. So I'm like very very nice. तो हम उसको कहीं ना कहीं इंक्लूड करना चाहते हैं. तो उस तरीके से इसको एक दूसरे तरीके पे लेके जाते हैं. एंड द whole thing कि what are the charges like, you know, whatever we are charging at Mintleaf, it is like 10% that we are charging here. ठीक है, तो अगर वहाँ पे हम 7,800 ले रहे हैं RCT का, तो यहाँ 780 लेते हैं. ठीक है, वहाँ पे 2000 है क्लीनिंग का, यहाँ 200 रुपये लेते हैं. हमने पहले बहुत सारा रिसर्च किया, जो हमारे असिस्टेंट्स हैं जो इसमें रहते हैं, क्लीनर्स हैं जो इन लोगों के साथ रहते हैं, कि आप एक क्लीनिंग के लिए कितना खर्च कर सकते हो. तो उन्होंने बोला 500-700 रुपया ओके है, हम कर सकते हैं इतना. मतलब आप एवरेज ये मान के चलो कि अगर एक महीने एक दिन का 1,000-1,200 दिहाड़ी है, तो वो महीने में जितने भी कमा रहा है, तो एक दिन की उसको वो अपने ऊपर खर्च कर सकता है. तो हमने उसके भी 50% से कम में रखा, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनीथिंग deterrent
to bring them to the clinic. और जब तक 5 साल तक तो बिल्कुल it was only word of mouth. हमें समझ ही नहीं आता था कि हम कैसे इसको प्रमोट करें. ऐसे लगेगा कि कर्मा की आड़ में मिंट लीफ को प्रमोट कर रहे हो, और फिर मिंट लीफ ये ना लगने लगे कि मिंट लीफ ही एक अंडर प्रिविलेज्ड के लिए क्लिनिक है. Correct. तो समझ ही नहीं आता था. तो हमने कभी नहीं किया, लेकिन इनके वर्ड ऑफ माउथ से हर रोज 1 से 4 के बीच में पेशेंट्स होते थे, और हमारे डॉक्टर्स सारे वही डॉक्टर्स जो सब करते हैं वही इनका ट्रीटमेंट करते और हैं. अभी कहाँ पे है ये आपकी? अभी कर्मा क्लिनिक एक ही है, सेक्टर 51 में, लोटस वैली स्कूल के बिल्कुल साथ में, मेन रोड पे ही है. सो इट्स वी स्टार्टेड दिस 2 years बैक इन जून Oh wow. 2024. So it's nearly 1.5 years now. तो वहाँ पे ऑल द सेम डॉक्टर्स विजिट. ऑफ कोर्स देयर इज अ सिंगल डॉक्टर देयर. तो वो करने की कोशिश करती है जो उनको लगता है कि जो स्पेशलिस्ट के चाहिए, रूट कैनाल्स हैं या बच्चों के लिए कोई केस है या कोई गम सर्जरी आ गई, Then you get these then special- I go, even I do the surgeries there. Yes, I go there. वो पूरा उसी तरीके से प्लान होता है जैसे हमारे सारे स्पेशलिस्ट का होता है. Correct. वहाँ पे भी ऐसे ही रहता है. So it's like they should get the right kind of treatment. So this is how we are operating Karma, and I think we more passionate about Karma than Mint Leaf. Hmm. Because Mint Leaf हमारे लिए चलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो कर्मा को फंड कर रहा है. Correct. ठीक है, तो कर्मा इज मोर इम्पोर्टेंट. उसके अलावा हमारे 1-2 चीजें और है, लाइक वी आर वेरी पैशनेट अबाउट द एनवायरनमेंट. तो एक हमारा प्रोजेक्ट है बरगद. बरगद, okay. या सो आपके सारे नाम बहुत अच्छे अच्छे हाँ, आपने वो सब किए. every this goes to Dr. Arun, the credit. So it is like Bargad is in which we gift a plant to all the patients, Oh. and whenever we get Hmm. an opportunity. So till date we have gifted around 10-15,000 Wow. plants to everyone. जो भी हमें बोलता है आप कुछ दे, हाँ हम प्लांट भिजवा देंगे तुमको, तो उस पे हम अपना स्टिकर लगा के उनको प्लांट्स भेजते हैं. एंड प्लांट ऐसे होता है ना कि कोई फेंकता नहीं है उसको. हाँ. पहले हम लोग ये ब्रशेज और ये सब देते थे, वही जैसे भेड़ चाल Correct. पे सब चलता है, तो वो पता ही नहीं होता था कहाँ पे क्या है. तो अब प्लांट देते तो क्लिक करके फोटो भेजते हैं, थैंक यू वेरी मच, बेड साइड पे रखा है, वो दिल केयर फॉर इट. So one is this, and second is that we all are very book savvy kind of bookworms. आप मेरे किसी भी क्लिनिक में घुसोगे, हाँ. अगर पेशेंट नहीं होगा तो 3 डॉक्टर्स कोने में अपने किताबें लेके पढ़ रहे होते हैं. तो हमने हर क्लिनिक पे छोटी छोटी लाइब्रेरीज लगाई थी, तो फिजिकल बुक्स उसमें है. एनीबडी कैन डोनेट बुक्स देयर, एंड यू कैन जस्ट वॉक इन, सिट देयर, रीड, हैव अ कप ऑफ कॉफी विदाउट गिविंग अस एनी टुथ और एनीथिंग. Wow. So it's just walk-in libraries, and this works very well, especially in summers, जब And दोपहर में In all your in all our clinic. Oh wow. तो एक छोटे छोटे कॉर्नर्स हमने बनाए हैं, तो उसमें आपको कुछ डेंटल से रिलेटेड नहीं भी काम है, यू कैन जस्ट कम इन, सिट, टेक अ बुक, रीड, कीप द बुक बैक एंड गो. So that's all the 3 of the initiatives. So you spoke about oral health. Yeah. अभी इंडिया में जो मैं देखता हूँ ना कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर तो है ही नहीं. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक इंडियन फैमिली में लोगों को प्रिवेंटिव डेंटल केयर के लिए पता होनी ही चाहिए, या लोग इतने अवेयर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है? सबसे बड़ा लैकिंग क्वेश्चन जो मुझे लगता है वो ये है कि आज के दिन एक पढ़ा लिखा इंडियन भी ये सोचता है कि किड्स टीथ डू नॉट नीड एनी इंटरवेंशन, Correct. दे डू नॉट नीड अ डेंटिस्ट, क्योंकि वो तो दूध के दांता निकल ही जाना है. हाँ. They don't know that this is the basis of their oral health throughout life. Correct. ठीक है, तो अगर आप बच्चे के मुंह में जो दांत आ रहा है 3 साल तक, उसके सारे दूध के दांत आ जाते हैं. ठीक है, उसके मुंह में 20 दांत आता है, वो दांत में अगर एक में भी कोई डिके हो जाता है, और वो दांत आप सोचते हो कोई बात नहीं. अब उसके नेगेटिव्स मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले बच्चे को जो पेन हो रहा है, ठीक है, तो पेन के लिए आप पेन किलर उसको खिला रहे हो, लेकिन दांत ट्रीटमेंट नहीं कराना है. उसकी बॉडी में कितना मर्जी दवाई चले जाए, लेकिन वहाँ लोकल नहीं. दांत का ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कभी भी दवाई से ठीक नहीं हो सकता. यू विल हैव टू गेट इट ट्रीटेड, Absolutely. इधर फिल्ड, रूट कैनाल, एक्सट्रैक्टेड, और व्हाटएवर, दांत का दर्द तो और दर्द. तो वो बच्चा दांत का दर्द सहेगा, फिर उसका दांत खराब हो जाएगा या काला हो जाएगा, तो उसको सोशल, आज बच्चे के अंदर हमें लगता है बच्चे को क्या फर्क पड़ता है, हाँ. बट आई नो. रिसेंटली मैं बताती हूँ, एक बच्ची थी, पीछे में दर्द हो रहा था, माँ को बोल के आए मुझे पीछे दर्द है, पीछे दर्द है, पीछे दर्द है, और सामने के उसके 4 दांत नहीं थे. क्लिनिक चेयर पे बैठी, उसे बोला हाँ बताओ आपको क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना है. बच्चे से डायरेक्ट मैं बात करती हूँ, तो पूछा उसको, तो कहती है, तो उसकी मम्मी ने बोला कि आपने तो पीछे दर्द बताया था, कहती नहीं मुझे यहाँ पे टीथ चाहिए. एंड शी वॉज हार्डली 5-6 years old.
तो what kind of effect it is having on her mental health हाँ, that she is ready to bear the pain. ठीक है, वो तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं उधर से खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन मुझे सामने वाले दांत अपने चाहिए. So ये चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं. एंड एज अ पेरेंट भी अभी इसे पढ़े लिखे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि दूध के दांत है, टूट ही जाएंगे ये तो. लेकिन नहीं, एक भी दांत अगर खराब हो रहा है, सबसे पहले उसके अंदर परमानेंट टूथ उसके फॉलो कर रहा है, तो उसकी बड खराब हो सकती है. correct, फिर दूसरा, टाइम से पहले अगर वो निकल जाता है हम्म, तो परमानेंट टीथ आपके टेढ़े मेढ़े आएंगे. Correct. एक बार टेढ़े मेढ़े आ गए तो फिर तो ब्रेसेस लगवाओ. Correct. ब्रेसेस का पेन बच्चा सा है या उससे जो, चलो पेन आजकल नहीं भी हो रहा है तो ट्रबल तो है वो एक Correct, चीज. ठीक है, absolutely. और वो चीज कभी भी 100% के पास में नहीं आ पाएगी. प्लस जो बच्चे की ग्रोथ में और मेंटल और फिजिकल हेल्थ में जो प्लस डाइजेशन everything is affected by this. So this is one thing which we are not taking kids to the dentist at all. तो प्रिवेंटिव तो आप भूल जाओ, थेरेपेटिक के लिए नहीं लेके जा रहे हैं, वो उनको Correct. ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेके जा रहे हैं. तो प्रिवेंटिव में मैं ये कहती हूँ कि सबको या तो वेन एवर द फर्स्ट टूथ कम्स और व्हेन द चाइल्ड इज 1 year of एज, उसको क्लिनिक ले जाना शुरू करें. 6 monthly लेके जाएं हमारे. और सेकंड अगर हम बोलें तो हम जनरली भी हमारे पास प्रिवेंटिव डेंटल चेकअप का, अभी कोविड के बाद मैं देख रही हूँ लोगों को ब्लड टेस्ट और इन सब में करेक्ट थोड़ा बढ़ गया है. हाँ कि राइट हमको 3 महीने में 6 महीने में एक बार करा- अपना ब्लड correct. टेस्ट करा लो, हमारा सब ठीक है. तो 6 महीने में एक बार डेंटल क्लिनिक जाने के में क्या हर्ज है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? यही होगा कि कुछ नहीं है या छोटा मोटा कुछ निकल आएगा तो वो ठीक हो जाएगा. So every 6 months, even if I feel कि सब कुछ ठीक है, healthy है, I should visit a doctor in 6 months. यस, बिकॉज वो आपको लग रहा है कि ठीक है. ठीक है, आप जब नॉर्मल जब क्लीनिंग करते हो ना, Correct. तो वो से आप क्या क्लीन कर रहे हो, एक फिल्म बन जाती है जो एवरी 12 आवर बनती है. सलाइवा की वजह से एक प्रोटेक्टिव फिल्म हमारे टीथ पे बनती है. Okay. तो आपने 12 घंटे में सुबह और 12 घंटे बाद रात को ब्रश किया, सिर्फ वो फिल्म हटा दिया. हाँ. ड्यूरिंग द डे जो भी आपने खाया पिया है, तो हमारे दांतों के सरफेस पे और गम्स के अंदर जो भी माइक्रो पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाएंगे, जो कि आप नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकाल सकते. और कोई भी दांत की बीमारी सिर्फ 2 जगह से शुरू होती है, या तो डिके होगा या गम डिजीज होगा. गम डिजीज होगा, दांत बोन खत्म हो जाएगी, दांत ढीले हो जाएंगे, दांत गिर गए, पायरिया हो गया. डिके होगा, डिके बढ़ के आरसीटी हो जाएगा, आरसीटी बढ़ के उसके ऊपर क्राउन होगा, या वो निकाल के फिर इम्प्लांट डालना पड़ेगा. वो निकल गया बच्चे में तो उसके बाद वो टेढ़े मेढ़े दांत आ गए तो ब्रेसेस लगाना. तो सब चीजें सिर्फ 2 चीजों से स्टार्ट हो रही है, या गम डिजीज या अगर एक बच्चा चॉकलेट खा रहा है पूरा दिन लेकिन सुबह और रात को ब्रश कर रहा है टाइमली, इज इट ओके टू डू दैट? it is very much okay, as much okay as I am having a very pimply skin and I am washing my face thrice a day, but I'm not getting as clear skin as you. Getting my points? Everything is very genetically determined. वर्किंग इन एरियाज लाइक रोहतक के आसपास के जो हमारे पास आते थे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ऐसे लोग थे जो ये कहते हैं हमें ये भी नहीं पता ब्रश दिखती कैसे है, और तुम उनके दांत देखो मोतियों की तरह चमकते हुए. एंड ऐसे लोग भी है जो ये कहता है कि मैं दिन में 3 बार ब्रश करता हूँ, वट एवर आई ईट आई ब्रश, बट मेरे को स्टिल केरीज है या गम डिजीज है. एंड व्हेन यू गो इनटू द हिस्ट्री, हाँ मेरे मम्मी को था या मेरी दादी को था या मेरी बुआ को है, कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री मिलेगी. मेरे फादर को अगर स्किन पिंपल्स थे, मुझे भी आ गए, आगे मेरी डॉटर को भी हैं, तो उसका मेरे फेस वॉश करने से या कोई भी चीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, इट कैन हेल्प, इट विल हेल्प, लेकिन उसमें किस तरीके से है वो आपको खुद देखना पड़ेगा. आपके बच्चे के अंदर में क्या है, आपके दांत कैसे थे, उस वही चीज आपके बच्चों को आने वाली है क्या. और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, आजकल हर चीज बहुत अलग हो गई है, जेनेटिक लेवल पे भी बहुत ज्यादा दिक्कतें, मतलब चेंजेस आ रहे हैं. करेक्ट. तो यू नेवर नो व्हाट द किड इज, हाउ द किड्स बॉडी बिहेव. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज फैक्ट फूड हैबिट्स आर वेरी करेक्ट. डिफरेंट. तो खुद भी खा रहे हैं वो, उसके बाद में अगर आप 10 दिन में या 15 दिन में एक बार उसका मुंह खोल के देख रहे हैं, या उसको 6 महीने में 4-5 महीने में एक बार डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, देख रहा है वो कहीं कोई चीज शुरू नहीं हो रही है, इट्स फन, गुड इनफ. फिर वो कुछ भी खाए पिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक वो उसको क्लीन कर रहा है. ऑफ कोर्स सुबह शाम क्लीन कर रहा है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते बच्चे. राइट. और 6 साल से पहले वाले बच्चे को आप 100% कंट्रोल नहीं दे सकते. यू विल हैव टू डू इट अपने आप, हाथ से करना पड़ेगा. मोटर स्किल्स अभी डेवलप ही नहीं हुई. हम ये सोच के बैठे अरे ये तो दिन में 2 बार ब्रश करता है, वो नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है वो. तो So, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ब्रशेस आई गेस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दिस. हमारे ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए, Very- हार्ड होने चाहिए, मीडियम, Very वेरी सॉफ्ट. very soft. ओके. बिकॉज देखो मैंने बताया जैसे आपको कि
ब्रशिंग का पर्पस है सिर्फ वो सलाइवा की लेयर को हटाओ। और बहुत सारे लोग मतलब दे That टेक is the 5 मिनट्स 10 biggest मिनट्स टू myth. ब्रश। यस, कि हमारे दांत साफ हो जाएं। हाँ अब वो फिर अलग से वही चीज आती है जेनेटिकली। एनामल की थिकनेस जितनी होगी उतना वाइटर दिखेगा, बिकॉज एनामल इज वाइट इन कलर, डेंटिन इज येलो इन कलर। ठीक है, तो एनामल की सबसे ऊपर लेयर है, जितनी मोटी एनामल की लेयर है उतना ज्यादा वाइट दांत दिख रहा है। जितना एनामल लेयर पतली होगी उतना पीले होते जाएंगे, क्योंकि डेंटिन झलकेगा उसमें से। तो अगर मेरे में जेनेटिकली एनामल की लेयर मोटी है तो मेरे दांत सफेद दिख रहा है, तुम्हारे में नहीं है तो तुम्हारे थोड़ा पीले दिख रहे हैं, क्योंकि अंदर से डेंटिन झलक रहा है। और क्या क्लीनिंग एनामल भी डिके करती? बिल्कुल भी नहीं करती। दिस इज Oh. व्हेन यू वी टॉक्ड अबाउट ना कि क्या मिथ है, हाँ because it is ultrasonic clinic. What is sonic? Sonic is sound, waves. So जब हम उसको ऑन करते हैं तो मैं हमेशा पेशेंट को पहले नेल पे करके दिखाती हूँ कि यू नो आई हैव, दिस इज वन ऑफ द एसओपीज कि हमारे जो भी डॉक्टर कर रहा है, पेशेंट को पहले ये दिखाओ कि दिस इज नॉट गोइंग टू हर्ट यू, वी आर नॉट टचिंग इट एज इन की स्क्रैपिंग एनीथिंग, करेक्ट। इट इज दिस पॉइंट टच एंड वहाँ जो डिपॉजिट्स हैं बस वो निकल रहे हैं विद द प्रेशर एंड विद द वाइब्रेशन, दैट अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से वहां पे जो भी चीज है वो निकल रही है। अब अगर आपने जिंदगी में कभी क्लीनिंग कराया ही नहीं और वहां पे डिपॉजिट्स इतने सारे हो गए, तो कुछ दिन जब वो डिपॉजिट्स निकलेंगे तो आपको यही लगेगा कि मेरे दांत का कोई हिस्सा ही निकल गया। समझ लो, तो वो होता है जब लगता है अरे यार मेरे दांत तो छोटे हो गए या कुछ, क्योंकि वो जो जमा हो चुका है ना, अंदर कैलकुलस उसको बोलता है, दैट्स फुल ऑफ बैक्टीरिया, और वो आपकी बोन हेल्थ को खराब कर रहा है। या कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे क्लीनिंग कराने के बाद दांत ढीले हो गए, क्योंकि वो इसीलिए ढीले हुए कि वो जो कैलकुलस है उसी ने आपके दांत जकड़े हुए थे, बाकी बोन तो आपके नीचे जा चुकी है, बैक्टीरिया सब खा चुका है, और जैसे ही वो कैलकुलस को हटाया उसकी सपोर्ट नहीं रही तो वो दांत सब ढीले हो गए। तो दे प्रेफर की यार अब तो जो है वो रहने वैसे दो। ही रहे। तो वो बड़ा एक विशियस सा सर्कल जो है ना वो चलता रहता है। हाँ वो डिके होता ही जाता है विद टाइम। तो वो एक सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना देर लगता है मतलब कि आप ब्रश करके जस्ट सी इट इन योरसेल्फ इन द मिरर, योर माउथ, कहीं कोई अगर छोटा मोटा डिके दिख रहा है, आप कंसल्टेशन, सिर्फ एक कंसल्टेशन देने के लिए कि मुझे 500 रुपये 700 रुपये कंसल्टेशन देना पड़ेगा, आप क्लिनिक पे नहीं जा रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा बड़ा एक खर्चा अपने सिर पे मान रहे हो। अगर वो चीज आरसीटी अच्छा, बन जाती है आगे absolutely. जाके, या उसके वो निकाल के उसमें इम्प्लांट डालना पड़ता है, तो 500 रुपये कब 50,000 1 लाख बन जाएगा पता पता ही नहीं लगेगा। चलेगा। करेक्ट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टूथपेस्ट कौन देखो- सा होना चाहिए? सो अभी बीच में एक वो आया था कि टूथपेस्ट के ऊपर रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर कौन? टूथपेस्ट का देखो मेन पर्पस जो था ना, जब स्टार्ट हुआ था टूथपेस्ट, आपको पता है कि गांव में हमारे लोग पहले वो नीम की दातुन एंड ऑल Correct, यूज कर हाँ। रहे थे, ठीक है। लेकिन जो टूथपेस्ट स्टार्ट हुआ था दैट वाज मोर टू ल्योर द पेशेंट टू यू नो कुछ टेस्ट आ रहा है, फ्रेशनेस एक आ जाएगी माउथ के अंदर, तो नो डाउट फ्रेशनेस के लिए ही वो ऐड हुआ था। बट उसके बाद फिर जब वो बिकने लगती है ना चीज, तो ये जो भी एकदम इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन हाँ। वो सब हो गया। लेकिन अगर मैं ब्रश और आपको पेस्ट के बारे में बताऊं, तो ब्रश आपको वो यूज करना चाहिए जो सॉफ्टेस्ट ब्रिसल्स हों जिसके, Okay. और हेड छोटा हो, अच्छा, सो दैट यू you विल can बी move it. एबल टू ओके रीच द फारदेस्ट कॉर्नर। जिसका हेड बड़ा होगा ना, आप नहीं जा मिल जाएगा, और जो बड़े हेड से ब्रश करता होगा उनके पीछे के दांत हमेशा डिकेड मिलेंगे, क्योंकि वो क्लीन नहीं कर पा रहे वहाँ, साइड में क्लीन नहीं कर पा रहे। छोटा हेड होगा पहुंच जाएगा वहाँ। नंबर 2, बिल्कुल सॉफ्ट होगा, तो कभी अगर आप जोर से भी कर रहे हो तो भी वो होगा। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि आप बहुत जोर से ब्रश कर रहे हो, तो 1 महीने के लिए अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से ब्रश करो, राइट हो तो लेफ्ट से, तो उससे क्या होगा, अपने आप सॉफ्ट अपने आप सॉफ्टली करोगे, आप माइंडफुल हो जाओगे, और जब आप राइट से शुरू करोगे तो आपके गम्स आपको बताएंगे आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना प्रेशर करना है। करेक्ट। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट आई टेल एवरी पेशेंट Oh, कि wow. आपको ये करना है। दिस इज द बेसिक दैट ऑल आवर डॉक्टर्स टेल ऑल द पेशेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टूथपेस्ट का। अब टूथपेस्ट हमें वो यूज करना है जो भी कोई गम केयर के लिए है, ठीक है, जैसे कि चाहे वो कोलगेट हो, पेप्सोडेंट हो, व्हाइटनिंग पे मैं आऊंगी अभी तो गम केयर के लिए कोई भी चीज बनी है ना, वो थोड़ा सा जेंटलर होगी, तो हम गम केयर के लिए कुछ भी यूज कर रहे हैं, दैट्स ओके। जब वाइटनिंग की बात होती है ना, तो वाइटनिंग इज समवेयर स्क्रेपिंग, या पाउडर हो गया या वाइटनिंग हो गया, तो वो आपके नेमल को स्क्रेप ऑफ कर रहा है। आप लगातार 1 हफ्ता वाइटनिंग टूथपेस्ट करके देखो, 7वें दिन आपको सेंसिटिविटी ना शुरू हो जाए, तो ओ पक्का सेंसिटिविटी हो जाएगी शुरू कहीं ना कहीं से, बिकॉज द tooth size is such that कि on the edges of the gums the enamel is very thin, naturally it is very thin, तो वहां से वो अब्रेड होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही डेंटिन एक्सपोज होगा आपको उस पर थोड़ा बहुत ठंडा गर्म लगेगा।
तो वाइटनिंग टूथपेस्ट आर अ बिगेस्ट हॉक्स। और सबसे ज्यादा वो जो होता है ना कि एंड लोग तो सबसे ज्यादा वही लेते हैं बिकॉज एवरीवन वांट्स तो ट्विस्ट। वेस्ट नहीं होता है उससे, कुछ भी हाँ। फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल जस्ट एब्रेड। और रादर बहुत लोग आपको ये भी कहते हुए मिले मैं इतना ज्यादा ब्रश करता हूँ मेरे दांत पीले होते जा रहे हैं, क्योंकि आप इनेमल को घिसते चले जा रहे हो। डेंटिन इज येलो, जो अंदर से झलकता चला जा रहा है। जितना जोर से ब्रश करोगे उतना ज्यादा इनेमल घिसेगा, उतना ज्यादा डेंटिन दिखेगा। आइडियल टाइम मेरे को ब्रश करना चाहिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 30 सेकेंड्स, 20 देखिए सेकेंड्स। आइडियली वैसे बोलते हैं कि 2 मिनट, लेकिन आप 2 मिनट का ऐसे टाइमर अगर नहीं लगा रहे हो तो आप ये समझ के चलो कि हर क्वाड्रेंट में, मान कि ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसको आप 3 हिस्सों में बांटते हो। एक इधर से च्यू करते हैं, एक अंदर का सरफेस, एक बाहर का सरफेस। ये सब सरफेस पे हमको एटलीस्ट 20 स्ट्रोक्स वहां पे लगाने चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो तो 2 मिनट अपने आप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा इंटरडेंटल बचता है, दोनों दांत के बीच की जो जगह होती है, विच इज मोर देन 30% ऑफ द सरफेस। और जहां से मेजरली डिके स्टार्ट होता है, 2 दांत के बीच में कुछ फंस गया, हमने क्लीन नहीं किया, उसके लिए आप या तो फ्लॉस कर सकते हो, इफ यू नो हाउ टू फ्लॉस प्रॉपरली। क्योंकि हमारे इंडियंस को बहुत ज्यादा नहीं आती फ्लॉस करनी, तो दे पता ही नहीं। एंड ऑफ ऑन हर्टिंग देयर गम्स। तो वो मसूड़ा भूल गया, अब मैं कर ही नहीं रहा। हाँ करेक्ट। तो अभी एक बेटर ऑप्शन है, या तो इंटरडेंटल एक ब्रश आता है, बहुत छोटा सा होता है, बॉटल ब्रश जैसा, या फिर आप एक वाटर फ्लॉसर यूज करो। वाटर फ्लॉसर इज वेरी गुड। उसके अंदर आप माउथ वॉश डालो, पानी डालो, भी डालो। यू जस्ट हैव टू डू इट वंस अ डे, एनी टाइम, वेयरएवर यू हैव सम एंड टाइम। इट्स सेफ। वेरी सेफ एंड वेरी गुड। तो इट विल जस्ट क्लीन इन बिटवीन द टीथ। और जो आजकल ब्रशेस आ गए हैं विच मूव ऑन देयर ओन विद द मशीन। हाँ, उसमें भी मेरा एक वीडियो है, अभी इसमें जा रहे हैं ना, तो अभी ये सारे टॉपिक्स मैंने अपने ये वो यूट्यूब पे मैंने जैसे आपको बताया था उस पर डाला है। उसमें भी यही है कि डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। इफ़ यू आर वेरी लेजी कि मुझे 2 मिनट भी ध्यान से नहीं करना है, तो आप अल्ट्रासोनिक उसमें ब्रश एक होता है सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक, और एक Correct. होती है अल्ट्रासोनिक ब्रश। अल्ट्रासोनिक इज बेटर, क्योंकि वो 2-3 तरीके से मूव करता है, और वो ठीक है, जो भी आपका खाना फंसा हुआ है उसको निकालता है। तो उसमें ये है कि आप कुछ भी सोच रहे हैं, वो ब्रश अपना काम कर रही है, आपको बस धीरे धीरे उसको चलाना है। बहुत ज्यादा 2 मिनट के लिए आपको माइंडफुलनेस होने की जरूरत नहीं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। And then oral health also hampers my digestion. Why will it not? Because whatever we are eating from our mouth। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारे दांत गंदे हैं तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है, I don't want to sound very gross here, but they say that it is a written proof that if you don't brush for few days, then the halat of your oral cavity is equivalent to, or the number of bacteria there is equivalent to pot. समझ गया। So you can understand कि what kind of bacteria and what is the number of bacteria and the infection that you have there, and you just ingesting it. तो सबसे पहले तो वही आ गया। दूसरी चीज ये आती है कि अगर उसमें कोई डिके विके है, अब कोई इतना गंदा रख रहा है तो उसके सारे दांत तो होने नहीं वाले, कहीं ना कहीं उसको दर्द है, कुछ गड़बड़ होगी, तो वो च्यू ठीक से नहीं करेगा। जब वो च्यू ठीक से नहीं करेगा तो वो डाइजेस्ट कैसे ठीक से होगा? Correct. फिर उसके पेट में दर्द रहेगा, एसिडिटी होगी, इंटेस्टाइन्स भी ठीक से काम नहीं करेंगी, तो वो लीवर पे इफेक्ट करेगा। तो ऑल इन ऑल ये इतना ज्यादा एक विशियस सर्कल बन जाता है करेक्ट। कि जिसमें हम धीरे धीरे या तो उसकी आदत पड़ जाता है, राइट। और या फिर अगर हमको समझ में आता है तो फिर Later. हम तब तक चीजें ही खराब हो चीजें खराब हो जाए। वो ना, डेंटल हेल्थ इज समथिंग व्हेन वी लूज आवर टीथ ना, देन वी अंडरस्टैंड देयर इंपॉर्टेंस, एंड देन इट स्टार्ट्स हर्टिंग आवर पॉकेट्स। करेक्ट। एंड इंश्योरेंस ऑल्सो फॉर दैट मैटर डजंट कवर ऑल ऑफ दिस। इंश्योरेंस डजंट कवर। अभी हमारे कंट्री में मेजर प्रॉब्लम ये नहीं है दैट द इंश्योरेंस, वी डोंट हैव इंश्योरेंस टू कवर। कोई टीपीए नहीं है, करेक्ट। ठीक है, और गवर्नमेंट भी अगर कुछ दे रही है जो सीजीएचएस और इनके अंडर में है, दैट्स टू लेस। They will hardly give you 500-600 rupees for RCT, Correct. wherein it doesn't suffice. Absolutely. So that's a different topic altogether. But main thing is कि अगर insurance आती है ना, तो people would be more interested in getting the work Correct. done. And in fact अगर इंश्योरेंस पूरा कवर भी नहीं करे, एटलीस्ट प्रिवेंटिव तो होना चाहिए। Preventive cover हो, या कुछ मैंडेटरी करें कि Correct. ये चीज आपको मिलेगी until unless you show me कि आप 4 बार डेंटिस्ट के पास गए थे। Correct. तो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, फ्रॉम बेस लेवल टू द सीनियर लेवल, अलग अलग उसमें हो, सो दैट एवरीबडी जस्ट स्टार्ट गोइंग टू द डेंटल क्लिनिक, नॉट फॉर द ट्रीटमेंट बट फॉर द प्रिवेंटिव थिंग। दैट विल डेफिनेटली चेंज द होल गेम दैट वी आर। करेक्ट। सो हम वाइटनिंग के लिए बात कर रहे थे, है ना, वाइटनिंग टूथपेस्ट। वाइटनिंग जो हम वैसे भी डेंटल क्लिनिक्स में करवाते हैं, हाँ। हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम
the paste that we use? And does it actually last? It doesn't last. It will not last you for the lifetime. It is like more like if I'll tell you like hair color. ठीक है, तो वो क्या है जो वाइटनिंग उससे इट इज अ ब्लीच. Okay. ठीक है, तो उसमें भी अलग अलग क्वालिटीज हैं. तो हम्म. अगर जैसे अभी जूम वाइटनिंग जो है वो बहुत सेफ है. यूवी रेडिएशंस उसमें जो भी होती है वो सब सेफ है. उसमें आपको एक ब्लीच लगाता है, उसके बाद उसको रेडिएशन लगाता है. तो जो भी है वो थोड़ा सा आपकी इनेमल में पेनिट्रेट करता है. और जब वो इनेमल में एक लेयर तक पेनिट्रेट करेगा, जहां जहां वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वहां वहां वो उसको वाइटन कर देगा. ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम Decay होता जाए. हाँ कम होता चला जाएगा. 100% कम नहीं होगा, लेकिन हाँ 60-70% तक कम हो जाता है कि आपको साल में यू माइट फील कि मैं दोबारा करा लूं क्या. वो वाली चीज है. So एक साल में it lasts me for a year. हाँ, इट विल लास्ट यू फॉर And usually how much does it cost? somewhere starting from 12,000 to 18,000 depending And एक on. साल के लिए I'm हाँ, good. एक साल के लिए ये. Okay. मतलब आप कह रहे हो कि एक साल के लिए I'm good to go for that. लेकिन अगर आपको सेंसिटिविटी है पहले से ही हाँ. तो नहीं कराना चाहिए. Okay. जब उसको लगाएंगे सेंसिटिविटी पहले ही है. सेंसिटिविटी कब होती है कि जब हमारी कोई नर्व एक्सपोज है, इनेमल पतला हो गया है, हाँ. तो आपको नहीं कराना चाहिए. क्योंकि हम ऑन चेयर भी वी कीप आस्किंग, उसके अंदर ना साइकिल्स होती हैं. व्हेन यू अप्लाई एक साइकिल में बिल्कुल नहीं आता है, तो एक साइकिल, फिर सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, तो उसमें हम पूछते रहते हैं इज दिस कलर ओके, और वट एवर कलर यू वांट टू रीच, और आपके स्किन टोन के साथ मैच करके कि दिस इज ओके नॉट ओके. बट उसमें एक ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई सेंसिटिविटी तो नहीं हो रही है आपको. तो अगर कहीं पे किसी को कोई सेंसिटिविटी या कोई टिंगलिंग लग रहा है तो वी स्टॉप देयर Okay. कि इससे बढ़नी नहीं चाहिए, कोई नर्व डैमेज नहीं होना चाहिए. Is it possible to get my enamel back? No. Any treatment? नॉट एट ऑल. नॉट No treatment at all. So अगर एक बार enamel गया करेक्ट. लॉस्ट इज लॉस्ट. और मैं enamel कैसे बचा सकता हूँ? You just have to brush very mindfully. ब्रशिंग इज वन थिंग जिससे कि आपका हार्ड ब्रशिंग जिससे आपका इनेमल वेयर ऑफ हो रहा है. दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम ये करते हैं प्रैक्सिज्म, योर क्लेंचिंग During your sleep, gym. व्हेनेवर, हाँ. अगर हम ज्यादा फोर्स से कर रहे हैं, जो हमारे च्यूइंग सरफेस पे इनेमल है वो फ्लैटन आउट हो जाता है. और वहीं से sensitivity start हो जाती सेंसिटिविटी स्टार्ट. है. And वो दोबारा कभी नहीं आया. Enamel will never grow back. None of the teeth. अभी कुछ रिसर्चेस हो रही हैं जिसमें विजडम टूथ से स्टेम सेल्स निकाल के नए दांत बनाए जा रहे हैं. आई एम नॉट श्योर कब होगा, कैसे होगा, और आम लोगों तक कब तक कब तक पहुंचेगा, पहुंचे? और किस So, कॉस्ट पे कौन से पहुंचेगा? पहुंचेगा. इट माइट टेक फ्यू decades to reach there. So till then we'll have to just protect whatever we have with us. So ज्यादा ब्रशिंग से भी enamel खराब हो जाता है. बिल्कुल होगा. हार्ड ब्रशिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. हमें dissatisfied लगेगा कुछ दिन के लिए when we change to the softer thing, but that is the only way to go. Can we alternate this, as in not alternate, I would say, if I can just skip brushing and start using mouthwash? No? No. That will not. No. माउथ वॉश क्या करता है? माउथ वॉश ना बीच बीच में आपको मेंटेनेंस के लिए ओके. सबसे पहले तो कोई भी ऐसा माउथ वॉश नहीं है जो कि आपको रेगुलरली आप यूज करें, सिवाय एक के, वार्म सलाइल्सिस, Oh. नमक पानी कुल्ला. दैट इज द बेस्ट माउथ वॉश दैट यू कैन हैव. फिटकरी बोलते हैं लोग. हाँ, फिटकरी डाल सकते हैं वो भी, बट वो भी एक केमिकल है. हमको केमिकल क्यों डालना है उसमें? नमक पानी वार्म इसलिए बोलता है कि हमको बॉडी टेम्परेचर पे कोई चीज होगी दैट विल बी बेस्ट सूटेड फॉर आवर बॉडी. नंबर 2 सॉल्ट. सॉल्ट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी. छोटा मोटा कहीं आपको ब्रश भी लग गया, कोई चोट लग गई, तो वहां पे कुछ सूजन आ रही है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा. एंड नमक इज एंटी बैक्टीरियल. रिमेंबर हम अचार में नमक डाल के रखते थे उसे प्रिजर्व करने के लिए. Correct. वही चीज है, तो वो एंटी बैक्टीरियल है. तो वहां कुछ अगर छोटा मोटा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा होगा. इतना ज्यादा अंडररेटेड है वार्म सलाइन रिंसेस. मैं सब पेशेंट्स को ये बोलती हूँ, माउथ वॉश पूछते हैं, मैंने कहा माउथ वॉश करना तुमको ये करो. And I faintly remember बचपन में ना टीथ वाइटनिंग का बहुत ही देसी जुगाड़ है बोलूँगा. मम्मी पापा क्या बोलते थे कि मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा नमक डाल के लगाओ, 5 मिनट्स वेट करो एंड देन वॉश इट. एंड उस टाइम एक्चुअली वाइट लगते थे दांत. ठीक है वो, लेकिन उसमें वो तो हम फिर एब्रेड ही कर रहे हैं ना. नमक को एज अ एब्रेसिव यूज कर रहे हैं हम अपने इनेमल. करेक्ट. वो एक अलग था, वो तरीका अलग हो गया. लेकिन जो हम पानी में डाल के उसको वार्म सलाइन कर रहे हैं उसका पर्पज अलग हो गया. Correct. ठीक है, वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया. तो वो अगर दिन में आप एक बार कोई भी टाइम में कर रहे हो दैट विल हेल्प यू.
बट कहीं पे कुछ एक्टिव इन्फेक्शन है या हम कोई सर्जरी करते हैं, उसके बाद में हम 1-2 माउथ वॉशेज़ हैं जो हम एडवाइस करते हैं। बट कोई भी माउथ वॉश को ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए कि आप कॉन्टिन्यूअसली यूज़ कर रहे हो, कि आप 1 डेढ़ महीना करो, क्योंकि कुछ में होता है कि स्टेनिंग होती है, तो वो दांत पे स्टेन करेगा। और कुछ में कुछ जलाने के लिए सिर्फ आपको जलाने वाला सा देते हैं। आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स ऑफ दोज ब्रांड्स, तो वो वाली सेंसेशन आती है तो आपको लगता है बढ़िया हो गया, हाँ। लेकिन नहीं है वो कुछ भी। सो इट इज़ मेजरली, लेकिन फिर भी जब भी अगर कभी जा रहे हैं तो एक तो अल्कोहल ना हो उसमें, नॉन अल्कोहलिक हो, और थोड़ा बहुत कुछ क्लोरहेक्सिडिन टाइप कोई चीज़ एंटीबैक्टीरियल उसके अंदर होनी चाहिए, तो वो को यूज़ कर सकते हैं, पर बहुत लंबे टाइम तक नहीं करें। उसके ऑल्टरनेट वार्म सलाइन इज़ द बेस्ट माउथ वॉश, and it is never as an alternative for brushing. ब्रशिंग। Never. सो ज़्यादा ब्रश भी खराब है, कम ब्रश भी खराब है, एडिक्वेट होना चाहिए। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, एज मैंने भी इन्विजिलाइन कराया है ना, एंड एज आई सेड कि उसके बाद मैं ज़्यादा हंसने लगा हूँ, स्माइल करने लगा हूँ। पहले तो मैं हंसता ही नहीं था, लोग सोचते थे ये एकदम एंग्री, हमेशा गुस्से में रहता है बट बता कौन सकता है कि मेरे दांत खराब है इसलिए मैं नहीं हंस रहा हूँ। सो अभी इन्विजिलाइन आ गया है, देन वी हैव गॉट वीनियर्स एंड देन वी हैव गॉट ब्रेसेस। किसके लिए कौन सी चीज सही राइट फिट है? क्या इन्विजिलाइन बेस्ट है? मॉडर्न ब्रेसेस एक्चुअली हैं और उतने काम करते हैं जितना ब्रेसेस करते हैं? Yes, in 90% of cases it does work. इन्विजिलाइन अभी बहुत अच्छे, हमारी इन्विजिलाइन जो है वो आप ऐसे समझिए कि जैसे BMW गाड़ियाँ जिसने स्टार्ट की थी, तो इन्विजिलाइन इज अ ब्रांड। इट्स बेसिकली इनविजिबल ब्रेसेस। करेक्ट। ठीक है, तो इनविजिबल ब्रेसेस का इन्विजिलाइन एक ब्रांड है जिसने स्टार्ट किया था, और ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक अमेरिकन ब्रांड है जो पूरे वर्ल्ड में अभी चल रहा है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स भी देते हैं डॉक्टर्स को और सब कुछ है, तो ये बहुत अच्छा है इसका। पर अभी हमारे इंडियन ब्रांड्स भी हैं कुछ जो बहुत अच्छा इसमें आ रहे हैं। सो बेसिकली इनविजिबल ब्रेसेस, यस दे वर्क, और पेनलेस? नथिंग इज पेनलेस। ठीक है, बट पेनलेस हम उसमें बताती हूँ, पेनफुल और पेनलेस में डिफरेंस बताती हूँ। जब हम ब्रेसेस में जाते हैं तो ब्रेसेस का मतलब है हमारे जो दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनको हमें लाइन में लेके आना है। करेक्ट। एक और बड़ी फनी बात है, मैं आपको इसके रिलेटेड बताती हूँ। जब ब्रेसेस जब स्टार्ट हुए थे ना, सो द हिस्ट्री इज कि हमारे दांत जो हैं वो एक काम करते हैं, जो हमारा हील्स काम करती है हमारे नी और हिप बोन के लिए। एक हील ऊंची एक हील नीची पहनोगे तो घुटने जाएंगे या हिप जॉइंट जाएंगे। Correct. ठीक है, तो ऐसे ही दांत अगर हमारे टेढ़े मेढ़े होंगे तो हमारी च्यूइंग फोर्सेस अलग से लगेंगे, हमारी ये जॉइंट्स पेन करेगा, ये Correct. पेन होगा, पीछे पेन होगा, स्पॉन्डिलाइटिस, मायोफंक्शनल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम, जॉइंट प्रॉब्लम्स, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट। तो इसको ट्रीटमेंट के लिए हमारे ब्रेसेस स्टार्ट हुए थे, ताकि हम अपने दांतों को थोड़ा अलाइन में करें। उनकी जो फोर्सेस TMJ पे जा रही, सुंदर लगे। वो सुंदर लगना वाज द मेन साइड इफेक्ट। Correct. जब वो सुंदर लगने वाला साइड इफेक्ट आया तो अब हम बीइंग ह्यूमंस तो हमने सुंदर लगने पे ज्यादा ध्यान देके अभी वो सुंदर लगने के लिए हो रहे हैं। लेकिन रिजल्ट कुछ भी हो, हम कर क्या रहे हैं, हम दांत को मूव कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, तो मूव धीरे धीरे बेशक होगा, लेकिन जब भी कोई चीज बोन में मूव हो रही है उसमें आपको एक हल्का बहुत ट्रैक्शन लगेगा। करेक्ट। आई विल नॉट कॉल इट एज पेन, आई विल कॉल इट एज अ टेंडरनेस अ लिटिल बिट। जैसे कि आप बहुत जोर से, अभी मैं आपको बोलूं कि आप 4 किलोमीटर रन करके आओ, तो जो आपकी मसल्स में एक टेंडरनेस, सोरनेस, वो सोरनेस होती है। एंड बेसिकली इट स्टेज वेन एवर यू आर चेंजिंग द अलाइनर और गोइंग फॉर द अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर फॉर योर फिक्स्ड ब्रेसेस। Okay, so that is also like your braces, जैसे आप braces टाइट करते हो वैसे ही you'll get different aligners also. करेक्ट, अलाइनर्स आपको मिलते हैं। वो अलाइनर को कभी आपको 15 दिन बाद चेंज करना है, कुछ महीने भर बाद चेंज करना है। तो जब भी आप एक नया अलाइनर पहनेंगे वो उसको फोर्स में लगाएगा, किसी एक पर्टिकुलर दांत पे भी लगा सकता है, कुछ दांतों पे भी, तो फोर्स लगा रहा है उसको मूव करने के लिए। Right. तो वो कुछ दिनों के लिए सोरनेस वहां पे रहेगी, मूव कर देगा उसको, उसके बाद वो रिटेन करके रखेगा अगले 1 महीने के लिए उसी पोजीशन पे। ठीक है, तो वो सोरनेस 4-5 दिन रहती है। द सेम थिंग विच अ डेंटिस्ट डज, जब आप 1 महीने के बाद उनके उधर जाएंगे, वो तार चेंज करते हैं और उसको टाइटन अप करते हैं, तो वो 3-4 दिन के लिए आपको सोरनेस रहती है। Got it. तो इनविजिलाइन इज वेरी गुड टूल, जिसमें क्योंकि वो दिखता नहीं है, स्पेशली फॉर द अडल्ट्स जो बचपन में नहीं करा पाए,
वो लोग के लिए और जॉइंट प्रॉब्लम्स अभी हो रहे हैं या उनको एस्थेटिकली लग रहा है कि मुझे अभी ठीक कराना चाहिए, Correct. इट्स अ परफेक्ट थिंग। मैंने अपनी क्लिनिक पे 48-50 इयर्स तक के लोगों को ब्रेसेस और इनविजिलाइन दे के Wow. दे हैव गॉट वेरी ब्यूटीफुल स्माइल्स। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि आपका कोई भी काम नहीं रुकता है, आप सोशली भी मिंगल कर सकते हो, आप वर्क में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में मेंटेनेंस बहुत ईजी है। आपको खाने का कोई परहेज नहीं है, जैसे ब्रेसेस के लिए होता है तो उसमें खाने का परहेज है, Correct. हाँ. आप हार्ड नहीं बाइट कर सकते, Right. चॉकलेट कैरामल्स नहीं खा सकते, उसमें नहीं है क्योंकि आप And I have कोई भी to wear it throughout the day. थ्रू आउट एक्सेप्ट व्हेन यू आर ईटिंग, Okay. you don't have to chew with them, you can drink but not anything hot, but you can drink normal पानी और जो भी जूस जो लेते हैं। हाँ, हॉट लिक्विड्स नहीं लेना है, बाकी सोने वक्त जागने वक्त हमेशा आपको उसे पहन के रखना है, उतारा साफ किया वापस से पहन लिया, Oh, wow. ये करना है। तो इसमें बच्चों के साथ एक नेगेटिव ये रहता है कि खो देते हैं बच्चे, फिर वो उतना ही ट्रीटमेंट डिले हो जाता है और फिर वो नया बन के आएगा और फिर वो कॉस्ट भी उसमें ऐड हो जाती है, Correct. तो वो चीज़ों का एक थोड़ा सा नेगेटिव रहता है, बट And- एडल्ट्स के लिए इट इज परफेक्ट। Usually कितना टाइम लगता होगा? हम 12 से 18 महीने मान के चलते हैं। Okay. अगर बहुत मिनिमल कुछ है कि छोटा मोटा गैप क्लोज करना है तो इनविजिलाइन में अभी 3 मंथली, 6 मंथ के Oh. लिए, 9 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, ऐसे वाले भी आते हैं, तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर उसमें से So on an average, I'd say 1 year. 1 ईयर And yeah. this will cost me how much? इनविजिलाइन जो है वो 1.5 प्लस में स्टार्ट होता है, Okay. ठीक है, और तो इसलिए वो कॉस्ट फैक्टर उसमें आ जाता है वहाँ पे। ब्रेसेस अगर आप नॉर्मल मेटल ब्रेसेस लेते हैं तो वो 50K के आसपास में Oh. होता है। वो Almost 3 one टाइम्स, third. हाँ 3 टाइम्स एटलीस्ट जाता है start। And then comes veneers. हाँ विनियर्स। So let's say मेरे को braces नहीं चाहिए, मेरे को Invisalign नहीं पहनना है. Then विनियर्स देखो, विनियर्स क्या होता है, विनियर्स इज अनदर थिंग, ये भी एक डिटेल एक अलग हो जाएगा, बट विनियर इज जस्ट लाइक अ नेल लाइक थिंग, ठीक है, तो वो आपके दांत के ऊपर Cover. चिपकाया जाता है, कवर जैसे है, सिर्फ एक तरफ का कवर है। क्राउन इज जो पूरा ऐसे कवर करता है, ठीक है, विनियर इज जो सिर्फ नेल की तरह सामने से कवर करता है। Oh. सो विनियर इज आइडियल फॉर दोज जिनको कोई स्टेनिंग है, इंटरनल स्टेनिंग, फ्लोराइड स्टेनिंग है, कुछ को टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग्स वगैरह हो जाती है जो कि रह जाती हैं इवन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर कोर्सेज ऑफ मेडिसिन, उनके लिए विनियर्स ठीक है। विनियर्स उनके लिए भी ठीक है जिनका सामने से कोई छोटा सा चिप ऑफ हो गया और वो हमने वो 2-3 दांत ठीक करने हैं। Correct. विनियर्स उनके लिए भी ठीक हैं जिसमें कि बहुत मेजर कुछ नहीं है, पीछे इज ऑल ओके, पर सामने की जो हमारी अलाइनमेंट है वो बहुत ज्यादा वो नहीं है, या सामने के हमारे थोड़ा सा एंगल चेंज करना है, Correct. हम वहाँ भी विनियर्स उनको दे सकते हैं। पर जिसमें कि हमें दांत को बहुत ज्यादा मूव करना है वहाँ पे हम विनियर नहीं दे पाए। And veneers are also safe. विनियर सेफ है। विनियर्स में हमको हल्का 2 तरीके के होता है, एक तो हमको दांत थोड़ा सा इनेमल को हम उसमें 1/2 मिलीमीटर से भी कम, उतना 0.25 तक उसको थोड़ा सा रब करते हैं, एंड देन वी टेक इम्प्रेशन, कस्टम आपी के लिए बन के वो लैब से आते हैं, एंड इट इज़ वेरी मच नेचुरल लुकिंग, और बहुत ही मतलब असली से भी आपको बहुत सुंदर उसमें कलर ऑप्शंस भी हैं, आप कोई भी स्टेनिंग, कुछ भी कलर, कोई भी साइज ऑप्शन, जिनको साइज अच्छा नहीं लगते हैं, हाँ. कुछ के छोटे दांत हैं, कुछ के Correct. बहुत बड़े दांत हैं, हाँ. वो चीज के लिए विनियर परफेक्ट चॉइस है। And runs for as in. एवरी होल लाइफ कुछ नहीं होता, Oh, okay. कुछ नहीं, दे विल नॉट बी स्टेन्ड। आप कुछ भी खाओ पियो, हल्दी, वाइन, व्हाटएवर, इट विल नॉट स्टेन, ठीक है। नॉर्मल ब्रश करना है जैसे ब्रश कर रहे हो, Correct. इट विल क्लोज द गैप्स, इट विल ओपन द गैप्स, मतलब आपको स्पेसिंग देनी है, साइज ऊपर नीचे करना है, उसके लिए परफेक्ट है। So now we move to, you know, I guess all my audience wait for this session, which is rapid fire. ओके, And I've named this as Tooth, Truth, and Business. यस। So, ऑन दिस नोट वी स्टार्टेड वन सीरीज, आप उस पे भी जाएंगे ना हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो ट्रुथ बी टोल्ड की जगह ट्रुथ बी टोल्ड, सो दिस ठीक है। इज सिमिलर। मैंने वहीं से पिक किया। So, Tooth, Truth, and Business, मैं आपको questions दूंगा and आपको 4-5 seconds से ज़्यादा नहीं लगाना है, and you just have to answer those questions. And truth be told, okay? Okay, so first question. What's the most common line you hear from every patient the moment they sit on the dental chair? डॉक्टर साहब मुझे इस चेयर से बड़ा डर लगता है। Okay? So, one dental myth you wish people would stop believing right now. Like I talked कि Hmm. kids dental health is very important and scaling will not loosen your teeth. Okay?
The most in-demand dental service in 2025: implants, veneers, or aligners. Implants. Implants. It has actually risen a lot since the last few years because people are now aware that they want something permanent without harming their bagal wale daant. So instead of going for fixed prostheses or bridges, they're opting for Implants. A business decision that completely changed the Mint Leaf journey. One is that we expanded to different locations. We thought to expand. And number two is making my team empowered. Giving them the power to take decisions because that makes them, of course, that they feel responsible, more responsible towards the patient and also are belonging to Mint Leaf as well. ये मेरा है खुद का. Correct, absolutely. One marketing move that gave you instant results for your clinic. Whosoever enters Mint Leaf as a patient should be given the priority like he's the first patient for our clinic. उसको चाहे किंग ट्रीटमेंट बोल लो आप क्वीन ट्रीटमेंट बोल लो या वट एवर बट दिस इज एवरीबडी नोज कि जो भी एक पेशेंट आ रहा है बिकॉज एज पर द रिसर्च एवरी पेशेंट कैन ब्रिंग यू एटलीस्ट 32 पेशेंट्स बाय वर्ड ऑफ माउथ ओनली सो इफ यू ट्रीट दैट वन पेशेंट वाइजली देन यू आर अट्रैक्टिंग अनदर 30 themselves. The biggest mistake new dental entrepreneurs make when starting a clinic. That they look for quick returns. So nothing is quick. You'll have to put in a lot of hard work and money and your time and your expertise to get the results. Correct. If you had to pick one, perfect smile or perfect patient experience, what wins? I think perfect smile will give the patient a good experience. Yeah, if patient will not be smiling properly, then the experience was not good. So both follows each other. बहुत अच्छे हो आप इसमें. One piece of advice you'd give to young dentists who want to become entrepreneurs. Get skilled. Get one skill. Practice that skill and be sure that nobody can do this better than you. पहले business बनाने लगते हैं लोग. That skill. And then you offer that to someone and be very sure of it कि ये एक चीज है जिसमें मुझे कोई नहीं तोड़ सकता. Correct. उसके बाद बाकी चीज तो उस चीज के लिए उसे आप ही के पास आना पड़ेगा. Wow. Okay. What's harder, managing a team of dentists or managing anxious patients? Managing a team of doctors. Oh, is it? You won't believe it कि हमारा Mint Leaf is known for कि जहाँ कोई और नहीं कर पाता ना तो आपके पास आना है because we are now so much our team sometimes we just when we go on team outings and all that ना तो हम हंसते हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कि यार ये सब ऐसे वाले पेशेंट्स हमारे पास ही क्यों आते हैं because now it is like कि वो लोग सुनते हैं आपको तो ये हमको पता है कि पेशेंट आ रहा है कुछ प्रॉब्लम लेके आ रहा है और एक अच्छा डॉक्टर वही है जो जब तक सुनेगा नहीं ना उसका ट्रस्ट आप में नहीं होगा ना तो वो उसको आपकी फिर ट्रीटमेंट पे भी ट्रस्ट नहीं होने वाला. Correct. So Correct. that's important for us. One innovation in dental tech that genuinely excites you. डेंटल टेक में अभी ये है कि अगर कहीं से कुछ इनेमल रीग्रो होने लगे या अगर ये हो रहा है कि विजडम टीथ जो है वो उधर से वो स्टेम सेल्स निकाल के और वो कुछ किसी तरीके से इफ देयर समथिंग लाइक दिस कम्स दैट देयर इज अ क्योर फॉर the repair of the enamel, not with something artificial but something But within from your body. within from your body. The most challenging part about scaling multiple branches while keeping quality consistent. And I guess that's your USP also. Yes, so most challenging was just to keep the quality consistent, to hire that kind of team, to how to make the doctors believe in us that whatever I'm asking them to offer to the patients, they should also believe in it. And that Correct. I have seen that throughout the journey that I also very proudly say that I have an all-woman team. My all doctors are ladies except for few the visiting ones. Otherwise, मतलब all का मैं बोलूँगी तो 90% are female doctors. And they are like, I get so much good words from their families. कि that since she has started working for you, she's taking care of the house better,
kids better Oh, wow. because now she's satisfied whatever she's Mentally अगर आप अच्छे हो तो फिर तो सारी चीजें अच्छी करेक्ट रही सो तो जो चैलेंजिंग है इसमें यही है कि किस तरीके से हम मुझ में अपने डॉक्टर्स को इस चीज़ पे बिलीव कराऊं कि वॉट एवर वी आर डूइंग एट मिंट लीव इज द बेस्ट एंड नो वन एल्स इज डूइंग दैट एंड इफ यू नो वॉट टू डू विद दिस देन दैट विल बी द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल जर्नी सो हायरिंग आप अभी कैसे करते हो एंड व्हाट चैलेंजेस डू यू यूजुअली फेस इन हायरिंग चैलेंजेस में तो हायरिंग में पता है हमारे पास इतने सारे सीवीज आते हैं पहले होता था कि जब वो फर्स्ट क्लिनिक के बाद हमने स्टार्ट किया था ना तो इट वाज ऑलवेज लाइक यार डॉक्टर्स कहाँ से ले डॉक्टर्स कहाँ से ले अभी ये कि एवरी डे आई गेट 10 to 15 सीवीज तो लेकिन एक बड़ा वो रहता है कि पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर बिफोर गिविंग इन जो मुझे नहीं मालूम बाकी जगह पे भी हो सकता है रहता होगा लेकिन हमारे इधर में ज्यादा रहता है कि वो ना एलिजिबल ज्यादा समझता है बिकॉज वे आर डॉक्टर्स हर जगह वांट देयर नेम वो जो होता है ना मेरा नाम आना चाहिए हमारे डॉक्टर्स में ये बहुत ज्यादा है कि मेरा नाम कहीं नहीं आ रहा तो मैं बोलती हूँ मेरा भी कहीं नहीं आ रहा है नाम इट इज जस्ट दैट whosoever takes the institution forward will be given the credit Correct. whether it's me or my doctors or whatever एंड योर पेशेंट्स विल स्पीक अबाउट यू कई बार होता है मैं पास मैं सामने खड़ी हूँ मेरे को नहीं जानते हैं लोग कि नाम से जानेंगे डॉक्टर वंदना बट मैं डॉक्टर वंदना हूँ ये नहीं जानेंगे मेरे और के मिलने आ रहे हैं मुझे उन्हीं से मिलना है सो दैट रियली गिव्स मी प्लेजर कि Correct. दे आर नोन इक्वली So one thing you learned from running Mint Leaf that no textbook ever taught you. that please finance is a very important part of life ठीक है so whatever you're doing should learn about finance and how to take care of this you should know how to read a spreadsheet and how to talk to a CA how to file your taxes because none of this is taught in our medical school Correct. never even after 10th we never study maths so वो एक प्लस माइनस के लिए भी अभी कैलकुलेटर आ गया है फोन पे अदरवाइज वी नेवर टॉट दैट so I was also called in Maulana Azad as well as PGMS Rohtak as a speaker so this is one thing I highlighted there that I would request the faculty there to do something in the internship or final year so that everybody is not going to get a government job but Correct. even if they are going to get the life में ना finance बहुत important है Absolutely. जब तक उससे डरते रहेंगे हम तो नहीं होगा और अपना इस एंटरप्राइज में तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है फोको मॉडल कोको मॉडल और ये केपेक्स और ये सब आपको पता होना चाहिए Correct. चीजें ना Correct. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस आई लर्नड वेरी हार्ड वे If Mint Leaf could collaborate with one global brand, who would it be and why? गूगल Okay. Yeah, because I think Google somehow is working on the same principles that we have been working. So whenever we search, so focusing on quality, चाहे हमारा product थोड़ा delay भी हो रहा है, so everything is focused around quality, and the results they definitely show in some time. It might take some time, but it will not, you will not lose it. So ना सहज पके सो मीठा होए वाली जो चीज होती है so that is very important for us Google is one brand which me and Arun both we very much and moreover Google shares its birthday with me so Oh. Complete the sentence. Success in dentistry isn't just about skill, it's about persistence perseverance patience and passion 4 P's. Yeah. वाओ ओके आप मतलब प्रो हो इस पे है ना क्वेश्चंस सारे आपने जैसे आंसर किए हैं बिकॉज पिछले 11 साल से ना मैं शायद मेंटली ही सो रही हूँ वही जाग रही हूँ हाँ। सब कुछ वही हो रहा है तो अ ट्रू एंटरप्रेन्योर आई वुड से है ना yeah I think Loving I your got job. the definition of true entrepreneur but it's like yes it's our third child and we just take it like that वो दो बाकी दो से शायद ज्यादा ही पता होगा इटली के बारे में लेकिन हाँ we very very passionate about it because whatever we're doing it's like from the heart ऐसा नहीं है कि हमसे हमारे पास गलतियां नहीं हुई है हमसे या कहीं Correct. फेलियर नहीं हुआ है या हमने कहीं इम्प्रूव नहीं किया बट इट्स लाइक यू शुड जस्ट एक्नॉलेज दैट कि हाँ गलती हुई है या इसमें हाँ इसमें वो इम्प्रूव करते हैं ये आगे से नहीं होना चाहिए इसको ऐसे नहीं करना है तो क्या करना चाहिए
तो वो सब चीज़ें करते करते और स्टेप बैक लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिक्स हमने क्लोज भी की, ऑफ कोर्स दैट वाज अ हार्ड Correct. टाइम एज वेल। करेक्ट तो वो कभी कभी होता है ना, चारों तरफ से चीज़ें आ जाती हैं कि नो वी नो कि ये करना ही पड़ेगा। करेक्ट तो वो कंसोलिडेट करके टेकिंग अ स्टेप बैक, इट्स ऑलवेज नॉट नॉट बैकवर्ड्स, इट्स ऑलवेज फॉरवर्ड। फॉरवर्ड सो टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड अब आगे क्या करना है अब और कितने क्लिनिक्स पूरी हैं क्या करना है व्हाट्स योर मिशन नाउ अभी तो यही है कि अभी कर्मा कॉलेज लेके चलना है मेजरली, क्योंकि नेक्स्ट 2-3 years वी वांट टू फोकस ऑन कर्मा। क्योंकि यहाँ पे मिंटली ठीक है अभी जितना है, अगर वी वांट टू गिव ऑन द फ्रेंचाइजी थिंग, इसमें जाना चाहते हैं हम ज़्यादा आगे। लेकिन कर्मा को हम खुद लेके चलना चाहते हैं। Wow. इसी तरीके से कर्मा के मल्टीपल क्लिनिक्स होने चाहिए, उसको उसको एक बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, सो दैट पीपल शुड नो कि हम देयर इज अ प्लेस। So maybe Zomato, Swiggy's या of Amazons of the world should actually come in because Correct. they hold most of the chunk of blue collar employees. कनेक्टिंग विद देम, या हाँ, है भी एनजीओस तो बहुत सारे correct. कनेक्टेड है साथ में, उनके सबके बच्चे, उनके एम्प्लॉयज, स्कूल्स के एम्प्लॉयज, गार्ड्स, ये सब लोग आते हैं वहाँ पे। बट हाँ, अगर ये जोमेटो और स्विगी वाले जो डिलीवरी बॉयज हैं इनके लिए कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाए, या उबर कार ड्राइवर्स, ओला ड्राइवर्स, इनके लिए कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाए, तो वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग मच। दो Correct, 300 रुपया इज absolutely. लाइक मिनिमम विच एनीवन कैन गिव, बट आई जस्ट वांट टू give them this opportunity to smile better, to live a healthier life, Correct. for their themselves as well as their families. थैंक यू सो मच मैम मेरे इतने सारे क्वेश्चंस थे आपने सारे एकदम प्रो लेवल आंसर किए हैं एंड अब मेरे को भी ज़्यादा चीज़ें पता है मतलब कि ऑफ कोर्स व्यूअर्स को तो मिलेंगी ये फ्री का ज्ञान एकदम बेस्ट है ये आई गेस है ना पॉडकास्ट करो और ज्ञान ले लो आप ठीक है।